Good morning, student. So see, today I am going to take the fourth class of the chapter set. That means already I have taken 3 classes on this chapter. Okay. So last 3 क्लास जो मैंने किया है उस 3 क्लासेस में मैं बहुत कुछ डिस्कस किया. ठीक है. सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जब मैंने चैप्टर शुरू किया था मैंने अबाउट द सेट डिस्कस किया. इसका बाद सेट का जो कैटेगरी है, सेट का कैटेगरी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्मेट एंड रोस्टर फॉर्मेट, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड. आफ्टर दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट बिलोंग्स टू सिंबल. ओके. सो इन द लास्ट क्लास already I have discussed many definitions: singleton set, null set, finite set, infinite set, equal sets. So these things already I have discussed. But last class में जो मैंने definition discuss किया था उस definition का ऊपर में ज़्यादा sums मैंने नहीं किया था. ठीक है. आज वो जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेता हूँ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 तो वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1 का सम्स भी मैंने दिखा दिया था. सो क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस लीव इट, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. ओके. सो सी इन क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? Okay, I think this one also you can do. It's a very simple thing. Only simple sums are given. But I am doing question number 3. The same thing. Which of the following sets is a finite or infinite set? Okay. So let us start from question number 3.1. What is question number 3.1? The set of lines which are parallel to the x-axis. Let us discuss whether it is a finite set or infinite set. The set of lines which are parallel to the x-axis. Suppose see, if we take the x-axis and y-axis. Okay, so this is x-axis है कि नहीं? ये x-axis है और ये y-axis है. तो हम लोगों को क्या पूछा क्वेश्चन पे? हम लोगों को लाइंस ड्रॉ करना है. किस और वो जो लाइंस ड्रॉ करना है वो सब लाइंस जो है हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? जितना भी लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे सब लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है. व्हाट एवर लाइन्स वी शैल ड्रॉ ऑल द लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है. देखो एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की. सो सपोज इसका नाम दे दिया L1. ठीक है. फिर दूसरा लाइन ड्रॉ किया, ये भी एक्स एक्सिस का पैरेलल है, सो L2. नेक्स्ट और एक लाइन ड्रॉ किया L3. ऐसे करते करते हम लोग बहुत सारा लाइन्स ड्रॉ कर पाएंगे. We can go above, we can go below also. We can draw infinite number of lines. It can never be stopped because in the middle also, here also we can draw the lines. So we can draw infinite number of lines. So how many lines we shall obtain? We cannot say. How many lines we can draw which are parallel to x-axis? That means we can draw infinite number of lines. That means this set is an infinite set. Because when we shall write the set, it will be like this: L1, then L2, then L3. So it will be going on like this. We cannot say how many lines we can draw. So this is an infinite set. Clear? So this is question number 3.1. Next you see question number 3.2. The set of letters in the English alphabet. The set of letters in the English alphabet, if we write it, what are the English alphabet? There are 26 in English alphabet. That means it will first one will be A, next B, C, D. It is going on like this, and the last one is Z. So how many letters are there? If you write all the letters, only 26 letters will be there. That means total number of letters inside the set can be counted. So this is a finite set. All the letters inside the set we can count. So this is what? This is a finite set. Clear? So question number 2 is a finite set. Okay, so this is 2 finite. Finite set. What is the next one? Question number 3. The set of numbers which are multiple of 5. Next one is the set of numbers which are multiple of 5. This is 5 and 3. Set of numbers. This is exercise 1.2. Remember, set of numbers. Set of numbers which are
which are multiple of 5. Set of numbers which are multiple of 5. So how we can write down the numbers? You see, multiple of 5 means what? The number which you shall write that can be divided by 5. That is a multiple of 5. So first 5, because 5 can be divided by 5. Next number is what? 10, because 10 can be divided by 5. So 10 is a multiple of 5. Next 15. 15 is a multiple of 5 because 15 can be divided by 5. 20, then 25. So in this way we can write infinite number of numbers inside the set. So it cannot be ended. We cannot say how many numbers are there. So this is an infinite set. So this set is an infinite set. We cannot say how many numbers can be written inside the set. So this is an infinite set. Okay. Next you see question number 3. This is 3. Next 3-4. What is question number 3-4? The set of animals living on the earth. 3-4. Set of animals. Set of animals set of animals living on set of animals living on the earth. So see, what is the question here? Suppose we are writing the elements here. Okay. Whatever animals on the earth are there, we shall collect all the elements. Is it possible or impossible? It is possible. How it will be possible? Suppose I am just talking about Dick Boy. Okay, first we shall collect all the animals of Dick Boy. It is possible or not? It is possible because what we shall do? We shall divide the area into small parts, and we shall keep a person in every part. I will tell that particular person you collect all the animals from this area. Again in the another sector I will keep another person. मैं वहाँ पे और एक आदमी रख दूंगा और उसको बोलूँगा क्या, यू कलेक्ट ऑल द एनिमल्स ऑफ दिस एरिया. सो इन दिस वे जो डिगबॉय टाउन है, उस डिगबॉय टाउन का जितना भी एनिमल्स है हम लोग काउंट कर पाएंगे. अगर डिगबॉय का जितना भी एनिमल्स है उसको काउंट कर पाएंगे हम लोग. डिगबॉय का बगल में जो काउंट है उसका एनिमल्स भी कलेक्ट कर पाएंगे. बट इट विल टेक टाइम. लेकिन वो कलेक्शन होगा, हम लोग कितना एलिमेंट्स है उसको काउंट कर पाएंगे. वी कैन काउंट इट. It is possible. Since it is possible, so it is a finite set. Remember, this is a finite set because it is possible to collect all the elements. After that, we can count it. Or how many animals are collected, we can count it. So this is a finite set. And don't think that this is an infinite set. All the animals can be collected. Okay? So this is a finite set. It is possible. Maybe it will take 10 years, but it will be possible to collect all the elements. So this is a finite set. ठीक है. अभी देखो next question number 5. The set of circles passing through the origin. So this is a finite set. It is a finite set. Finite set. Next question is what? Next question is the set of circles passing through the origin. The set of circles passing through the origin. The set 3-5. Set of circles passing through the set of circles passing through origin. ओके देखो ओरिजिन क्या, सपोज 0,0. अभी हम लोग को सर्कल्स ड्रॉ करना है और वो जो सर्कल होगा वो कहाँ से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा. सो देखो एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, और एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर सकता हूँ
ए बी ओरिजिन से पास हुआ, और एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर सकता हूँ, ए बी ओरिजिन से पास हुआ। सो ऐसे करते करते हम लोग क्या कर पाएंगे, बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो ओरिजिन से पास हो रहा है, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, क्योंकि ये स्पेस जो है वो अनलिमिटेड है, इट हैज नो लिमिटेशंस। सो हम लोग बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। एक पॉइंट हम लोगों ने इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया, सेम पॉइंट से अगर हम लोग इसको रैप कर देते हैं, इस सर्कल को हम लोग इसको और एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। इस सर्कल को रैप कर दो, उससे भी बार हम लोग एक और एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट। So the number of circles that can be drawn passing through a particular point is always infinite. So answer will be infinite. So this is an infinite set. It is an infinite set. The number of circles passing through a particular point is infinite. Okay, so completed. Question number 3 completed. Now question number 4. In the following sets, state whether A and B are equal or not. Okay, so I am doing only question number 4 1. The rest of the sums you have to do by yourself. What is question number 4 1? You see, okay, 4 2 I am doing. Okay, 4 2 4 2. What is the set? A equal to how much? 4 8 12 16. What is B? 8 4 16 18. सो हम लोगों को देखना है, हम लोगों को चेक करना है कि ये दोनों जो सेट है, ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। सो वेरी सिंपल, कल मैंने बोला था कि हम लोगों को कैसे चेक करना है कि दो सेट जो है वो इक्वल होगा कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू कंडीशंस। दो सेट इक्वल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोगों को द कंडीशन जो है, दो कंडीशन को चेक करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों कंडीशन को मैं चेक करता हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स शुड बी सेम। यहाँ सेट ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट बी में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 4। सो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तब ये दोनों सेट इक्वल होगा। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा देन दिस टू सेट्स आर नॉट इक्वल। सो सेकंड कंडीशन क्या था? फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सेकंड सेट में होना चाहिए। 4 देखता हूं ये जो 4 है ये सेकंड सेट में है कि नहीं। 4 4 4 यस है, सो राइट मत देता। 8 देखता हूं ये सेकंड सेट में है कि नहीं, है कि नहीं, है, सो ए भी है। 12 देखता हूं ये सेकंड सेट में है कि नहीं, ये नहीं है। दैट मीन्स नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है हम लोगों को वो नेक्स्ट एलिमेंट चेक करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो बिकॉज ओनली 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द रिमेनिंग कंडीशंस हम लोग को चेक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड एलिमेंट जो है, थर्ड एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर में है ही नहीं। सो हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल हियर। नेक्स्ट यू सी क्वेश्चन नंबर 4, जो बाकी सम्स है द रिमेनिंग सम्स आर योर होमवर्क। ओके, यू कंप्लीटेड द रिमेनिंग सम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 यू कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या 5 में क्या बोला? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। वो भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग किस्म का है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 4 पे वो क्या था? रोस्टर फॉर्मेट में था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो सेट बिल्डर फॉर्मेट से हम लोगों को रोस्टर फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग बोल पाएंगे कि दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। सो रिमेंबर फ्रॉम द सेट बिल्डर फॉर्म डायरेक्टली वी कैनॉट से व्हेदर दिस टू सेट्स आर इक्वल और नॉट। अगर रोस्टर फॉर्मेट में सम दिया रहेगा तो हम लोग को रोस्टर फॉर्मेट से सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर दिया रहेगा हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्मेट से रोस्टर फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। ओके, सो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को 5 का 1 जो है, ए
सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 2, 3. सो यहाँ पे एलिमेंट्स डायरेक्टली विजिबल, सो इट इज इन द रोस्टर फॉर्म. सो ऑलरेडी जो साम है वो रोस्टर फॉर्मेट में है, सो इट डोंट नीड टू चेक इट. सेकेंड बी देखो, x such that x is a solution. X is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. So this sum it is in the set builder format. So सेट बिल्डर फॉर्मेट से हम लोग को रोस्टर फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा. रोस्टर फॉर्मेट में हम लोग हमको कैसे ले जाएंगे, x का वैल्यू निकाल के. सो हम लोग को क्या बोला, देखो b का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x, और x क्या है, x इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन से जो x का वैल्यू निकलेगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करके जो x का वैल्यू निकलेगा दैट इज द सॉल्यूशन. क्लियर? इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, हम लोग अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू निकलेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो x का वैल्यू क्या होता है. यू कैन डू इट ऑन ग्राफ. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो मिडिल टर्म फैक्टर अप्लाई करने से क्या होगा, x प्लस 3 इनटू x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो x का वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू -3 माइनस 2. दैट मींस यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो -3 है, -2 है. नाउ वी शैल चेक इट व्हेदर दिस टू सेट्स आर इक्वल और नॉट. देखो कंडीशन अप्लाई करो. सेट A में कितना एलिमेंट है, 2, 2. सेट B में कितना एलिमेंट है, 2, 2 है. सो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. लेट अस अप्लाई द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या था, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट सेकंड सेट में होना चाहिए. तो चेक करता हूँ, 2 है कि नहीं है. द फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट हियर, फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं है. सो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वी शुड नॉट चेक इट. हम लोग को वो नेक्स्ट एलिमेंट चेक नहीं करने से भी होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही सेटिस्फाई नहीं हुआ. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो ये दोनों सेट जो है, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट यू सी क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स. हम लोग को इक्वल सेट्स को कलेक्ट करना है. व्हिच सेट्स आर इक्वल सेट्स? क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल कितना कुछ सेट दिया हुआ है. ए 2, 4, 8, 12. B 1, 2, 3, 4. C 4, 8, 12, 14. C तो हो गया. D 3, 1, 4, 2. E -1, 1. F 0, 8. G 1, -1. H 0, 1. सो दीज आर द सेट्स. सो ये जो सेट्स है हम लोग को वेरीफाई करना है इन सेट में से कौन सा सेट इक्वल है. सो इक्वल सेट के लिए 2 कंडीशन चाहिए. देखता हूँ पहले ए और बी इक्वल है कि नहीं. ए और बी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, लेकिन यहाँ का जितना भी एलिमेंट है वो वहाँ पे है ही नहीं. सो ए और बी इक्वल नहीं है. हम लोग को क्या चेक करना है सिर्फ. फिर बी और सी, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है. यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है यहाँ से मैच करता है कि नहीं करता है. देखो यहाँ का सब एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं. सो बी और सी भी इक्वल नहीं है. बी और डी यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, लेकिन बी और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट यहाँ पे है. 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है. सो हम लोग को मिल गया बी इक्वल टू डी. ये दोनों से इक्वल मिल गया. ऐसा करके चेक करके देखो दूसरा कोई है कि नहीं. ई और जी,
यहाँ पे भी दो एलिमेंट है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट -1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ई और जी भी इक्वल हो गया। सो इन दिस वे यू कैन चेक इट। सो यहाँ पे जो सेट्स है बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि और कोई सेट इक्वल होगा बोल के, और कोई इक्वल से नहीं है। सो वी कैन से ई एंड जी आर गिवन, ई एंड जी। अगर कोई दूसरा निकलता है तो राइट इट डाउन। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे कितना इक्वल सेट मिला? सिर्फ दो पेयर ऑफ इक्वल सेट मिला, एक है बी और डी, दूसरा है ई और जी, और बाकी तो कोई इक्वल सेट है ही नहीं। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। आई शैल इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल स्टार्ट द सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, पावर सेट, वी शैल स्टार्ट दैट वन। सो फर्स्ट टू एक्सरसाइज you just try to learn nicely, you try to practice nicely, because जो हम लोग अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो जो चैप्टर्स है वो चैप्टर थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो है, प्राइमरी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ चैप्टर। ओके, थैंक यू।